Hello everyone, welcome back in your social science class. In our previous video, we had discussed about the introduction, the land and the climate of the Saudi Arabia. And in today's class, we will continue this chapter with the vegetations of Saudi Arabia. That what type of vegetations are seen in the Saudi Arabia. Very few plants can grow in the desert climate. Because in the Saudi Arabia, there is a desert climate, there is only sand, so only few plants can be seen here. Only few plants can grow here. Cacti and some short shrubs, cactus and some short shrubs which can withstand with hot and dry condition can be seen here. सऊदी अरेबिया में कैक्टस और कुछ छोटी छोटी शर्ब्स को ही हम देख सकते हैं क्योंकि ये कैक्टस और ये छोटी छोटी शर्ब्स हॉट एंड ड्राई कंडीशन में सरवाइव कर सकती हैं, इन्हें अडेप्ट कर सकती हैं. These plants have few leaves to conserve water from being evaporated. On these plants there are only few leaves because it helps in conserving the water. Most of the plants have long roots which go deep into the ground to absorb water. इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो काफी लंबी होती हैं और इस कारण से वो अर्थ में डीप चली जाती है, ग्राउंड के डीप चली जाती हैं और अंडरग्राउंड वाटर को अब्सॉर्ब कर लेती हैं. मींस अंडरग्राउंड वाटर को लेती हैं ये. एट द ओसिस डेट पाम crops like wheat and barley are grown. हम देखते हैं ओसिस, मैंने क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में कि ओसिस एक ऐसा एरिया होता है जहां पे डेजर्ट में अपने आप से अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आ जाता है. तो ओसिस के नियर डेट पाम कुछ क्रॉप्स को हम देख सकते हैं जैसे कि व्हीट और बैरली, क्योंकि वहां पे वाटर होता है इसीलिए वहां पे हम इन क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. Nowadays, many agriculture farms have been developed. In the Saudi Arabia, these days agriculture farms have been developed. Sea water, after removing its salt, is used for irrigation in these farms. जो भी हमारा सी वाटर होता है उसमें से सोल्ट को रिमूव कर दिया जाता है और फिर उस सी वाटर को इन फार्म्स में, इन मॉडर्न फार्म्स में एग्रीकल्चर के इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज एनिमल लाइफ. व्हाट टाइप ऑफ एनिमल लाइफ इज फाउंड इन द साउदी अरेबिया? एनिमल दैट कैन विथस्टैंड द हॉट एंड ड्राई कंडीशन आर फाउंड इन द डेजर्ट. द एनिमल्स विच अडेप्ट द हॉट एंड ड्राई कंडीशन आर फाउंड इन द डेजर्ट. गैजल, ओरेक्स, हाइना and ibex are common animals of Saudi Arabia. Sidewinder snake and dancing lizard are unique animals of the desert. These are the unique animal. Unique animal means जो कि सऊदी अरेबिया में ही देखे जाते हैं, एक डिफरेंट तरह के एनिमल्स. ओके, as you seen in the picture. The most important animal of the desert is the camel. The most important animal of the desert is the camel. It can survive without water and food for many days. Camel can survive in the desert without water and food for so many days. And that is why people use it to transport goods from one place to another. और सऊदी अरेबिया के लोग इस एनिमल को, कैमल को ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, गुड्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ले जाने के लिए. That is why we call the camel as the ship of desert. इसीलिए हम कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं कि एक शिप का काम करता है, जहाज का काम करता है डेजर्ट में. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल बोला जाता है इसको डेजर्ट का. This natural resources. What type of natural resources are found in the Saudi Arabia? Saudi Arabia is very rich in petroleum deposit. The main oil fields are located in Ghawar, Adikub,
एंड धरन। इसके जो मेन ऑयल फील्ड है वो कहाँ पे है? गवार में, एदिक्यूब में और धरन में। पेट्रोलियम इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज थ्रू शिप्स। एक्सपोर्टेड का मीनिंग क्या होता है? जब हम कोई गुड्स किसी बाहर की कंट्री को सेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो सऊदी अरेबिया बहुत सारी दूसरी कंट्रीज को पेट्रोलियम सेल करता है, उसको बेचता है, सोल्ड करता है। इंडिया आल्सो इम्पोर्ट्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। Import means when we purchase something from other country. Export means when we sell something to other country. Export का मतलब होता है जब हम किसी दूसरी कंट्री को कुछ सेल करते हैं, और import का मीनिंग होता है जब हम किसी दूसरी कंट्री से कुछ परचेज करते हैं। So India also purchase a large quantity of petroleum from the Saudi Arabia. इंडिया बहुत सारी क्वांटिटी में सऊदी अरेबिया से पेट्रोलियम परचेज करता है। और ये जो पेट्रोलियम है ये सऊदी अरेबिया की इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाई? क्योंकि पेट्रोलियम को सेल करके सऊदी अरेबिया को काफी सारी मनी मिलती है। ओके, सऊदी अरेबिया अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी विद द हेल्प ऑफ पेट्रोलियम बाय सेलिंग इट। नेक्स्ट इज transportation. Next topic is transportation. What type of transportation is in Saudi Arabia? There is a good network of roadways and airways in the Saudi Arabia. In Saudi Arabia, there is a road transportation and air transportation. A good network of both roadways and airways. We can see luxurious car on the road in Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया में हम बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत बड़ी बड़ी कारें देख सकती हैं जो कि पूरी लग्जरियस कार होती हैं, बहुत बढ़िया कार होती हैं। Big international airports are located in the Riyadh, Jiyad and Daman. सऊदी अरेबिया की रियाद, जियाद एंड दमन सिटी में हम काफी बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को देख सकते हैं। वहां पे काफी बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। जियाद, रस्तानुरा एंड यंको आर द मेन सी पोर्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया। These are the main seaport of Saudi Arabia. King Abdul Aziz International Airport in the Jiyad was the largest airport for many years. King Abdul Aziz International Airport को काफी समय तक, काफी years तक बहुत बड़ा एयरपोर्ट माना जाता था, सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता था वर्ल्ड का। Okay? Saudi Airlines is one of the best airlines in the world. तो सऊदी अरेबिया की जो एयरलाइंस की सर्विसेज हैं वो सबसे बेस्ट एयरलाइन सर्विसेज मानी जाती हैं वर्ल्ड की, कि सबसे बढ़िया सेवा करती हैं, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं सबको। ओके, सो दीज आर द वेजिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, animal life and natural resources of the Saudi Arabia. I hope you understand these topics. In our next class, we will discuss the next topics of the Saudi Arabia, next features of the Saudi Arabia. Thank you very much. Goodbye and take care.